جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کا پیارا محبوب فرماتا ہے کہ وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ حاجی اس طرح پاک ہوتا ہے اپنے گناہوں سے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سوال کیا گیا ہے علی جب باہر کے دیکھنے والوں کا کعبے کا عالم یہ ہے، آپ کو اندر پیدا ہوئے تھے، رب کے مقدس گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو آپ کو تو کعبے کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کی دائیں دیوار کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، بائیں دیوار کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، ہر طرف سے کعبہ کو دیکھنا چاہیے تھا، اوپر سے بھی کعبہ کو دیکھنا چاہیے تھا، نیچے سے بھی کعبہ کو دیکھنا چاہیے تھا، تو آپ نے کعبہ کو نہیں دیکھا۔ چلو ماں نے کہا تھا علی مجھے دیکھ لو، اپنی ماں کو دیکھ لیے ہوتے، باپ نے کہا علی مجھے دیکھ لو، اپنے والد کو دیکھ لیے ہوتے، پریوار والوں نے کہا علی ہمیں دیکھ لو، اپنے پریوار والوں کو دیکھ لیے ہوتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے رب کے مقدس گھر کو نہ دیکھا، آپ نے اپنی ماں کا چہرے کا دیدار نہ کیا، پہلے اپنے والد کو نہ دیکھا، کسی انسان کو نہ دیکھا، مصطفیٰ کو کیوں دیکھا؟ مصطفیٰ کو کیوں دیکھا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جس وقت میں کعبے میں پیدا ہوا تھا، کعبے میں 360 خدا رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ جس وقت کعبے میں میری ولادت ہوئی، اس وقت کعبے میں 360 خدا بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر خدا اپنی اپنی جگہ پہ قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ لات کہہ رہا تھا یہ میری جگہ ہے، عزا کہہ رہا تھا یہ میری جگہ ہے، منات کہہ رہا تھا میری خدا ہے۔ اللہ کا چھوٹا سا مقدس گھر خانہ کعبہ، اور 360 خدا، 360 بت اس کے اندر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا انہیں دیکھ کے کیا فائدہ، لاؤ اس چہرے کو دیکھوں جس کی ہیبت سے یہ ٹوٹ کر بکھرنے والے۔ حضرت علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے جس نور سے مجھے پیدا فرمایا اسی نور سے حضرت مولا علی کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کلمہ طیبہ کا درخت لگایا، وہ درخت جو دھیرے دھیرے بڑھا، جس میں شاخیں آ گئی، کہیں صداقت کی ڈال نظر آئی، کہیں عدالت کی، کہیں سخاوت کی، کہیں شجاعت کی، کہیں شرافت کی، کہیں امامت کی، کہیں ولایت کی، کہیں کرامت کی۔ ان ڈالوں میں خوبصورت پھول بھی نظر آئے، اور جو بھی اس ڈال کے قریب جاتا کلمہ طیبہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا، جو بھی قریب جاتا کلمہ طیبہ پڑھتا مومن ہو جاتا، جو بھی اس ڈال کے قریب جاتا کلمہ طیبہ پڑھتا ایمان لے آتا۔ اس ڈال کے سامنے چھوٹے سے امام حسین آ گئے، چھوٹے سے سید الشہداء آ گئے، اور آنے کے بعد ڈال کو بڑی غور سے دیکھنے لگے کہ اس درخت کو تو میرے نانا نے چھوٹا سا لگایا، بڑا پیارا سا لگایا تھا، بڑا اچھا لگایا تھا، اور جب لگایا تھا تو بتایا تھا یہ کلمہ طیبہ کا درخت ہے، یہ کلمہ طیبہ کا۔ امام حسین بڑی محبت سے اس درخت کو دیکھ رہے، اس پیڑ کو دیکھ رہے، اور دیکھنے کے بعد امام حسین کی نظر ان ڈالوں پہ پڑی کہ کہیں صداقت کی ڈال چمک رہی، کہیں عدالت کی ڈال مہک رہی، کہیں سخاوت کی ڈال چمک رہی تو کہیں شجاعت کی ڈال مہک رہی، کہیں امامت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں ولایت کی ڈال نظر آ رہی، کہیں کرامت کی ڈال نظر آ رہی۔ اور جو جو سلسلوں سے مرید ہو وہ خوش ہو جاؤ کہ حسین نے ان ڈالوں میں لگے ہوئے پھول کو دیکھا، مطلب یہ کہ تمام سلسلہ اور سلسلے میں رہنے والوں کو دیکھا، تمام سلسلہ اور سلسلے میں رہنے والوں کو دیکھا امام حسین نے کہ ان ڈالوں پہ جو پھول لگے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، کہیں مداری پھول نظر آ رہے ہیں، کہیں نقشبندی پھول نظر آ رہے ہیں، کہیں سہروردی پھول نظر آ رہے ہیں، کہیں قادری پھول نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین دیکھ کر مسکرا رہے کہ یہ تمام سلسلہ کتنا پیارا ہے، کہ ہر سلسلہ چلتے چلتے میرے بابا مولا علی کے دیار میں آتا ہے، ہر سلسلہ چلتے چلتے میرے بابا علی کے دربار میں آتا ہے، اور اس کا ان کا وسیلہ لے کر کے سیدھا وہ سلسلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بڑے خوش ہو کر کے حضرت امام حسین اس کلمہ طیبہ کے درخت کو دیکھ رہے تھے، بڑے پیار سے امام حسین اس کلمہ طیبہ کے پیڑ کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین نے دیکھا کہ ان ڈالوں کے بیچ میں ایک ایسی ڈال نکل آئی ہے جس ڈال سے صداقت کو خطرہ ہونے والا ہے، جس ڈال سے عدالت کو بھی خطرہ ہے، جس ڈال سے سخاوت کو بھی خطرہ ہے، جس ڈال
शुजाअत को भी खतरा है, जिस डाल से इमामत को भी खतरा है, जिस डाल से विलायत को भी खतरा है, जिस डाल से करामत को भी खतरा है। सिर्फ डालों को ही नहीं, बल्कि अगर वो डाल दरख्त में मौजूद है तो सिलसिलों को भी खतरा है, तमाम फूलों को भी खतरा है। इमाम हुसैन ने देखा कि इसमें तो डालें भी चमक रही थी, तमाम फूल भी चमक रहे थे, लेकिन इतने पाक दरख्त में ये नापाक डाल आ कैसे गई है, ये नापाक डाल आ कैसे गई है। और जिसके आने से कलमाए तैयबा के दरख्त में भी फर्क पड़ने वाला है। इमाम हुसैन चले सीधा नाना मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते नाना जान, आपने एक छोटा सा दरख्त लगाया था कलमाए तैयबा का, बड़ा प्यारा दरख्त, बहुत अच्छा दरख्त था, इतना प्यारा दरख्त था, इतना प्यारा दरख्त था नाना जान कि जैसे जैसे वो दरख्त बढ़ा उसमें डालें भी बड़ी खूबसूरत नजर आई, कहीं सदाकत की नजर आई, कहीं अदालत की नजर आई, कहीं सखावत की नजर आई, कहीं शुजाअत की नजर आई, कहीं इमामत की नजर आई, कहीं विलायत की नजर आई, कहीं करामत की नजर आई, और उन डालों में फूल भी तमाम सिलसिलों के नजर आए। लेकिन या नाना जान, उन तमाम डालों के बीच में कलमाए तैयबा के दरख्त के बीचों बीच में एक ऐसी डाल आ गई है जिस डाल से कलमाए तैयबा के पेड़ में फर्क पड़ने वाला है, जिस डाल से सदाकत की डाल को भी फर्क पड़ने वाला है, अदालत में भी फर्क पड़ने वाला है, सखावत को भी फर्क पड़ने वाला है, शुजाअत में भी फर्क पड़ने वाला है, इमामत में भी फर्क पड़ने वाला है, विलायत में भी फर्क पड़ने वाला है। मतलब ये है कि इतने साल की मेहनत नाना जान अगर वो दरख्त में मौजूद है तो आपकी मेहनत में फर्क पड़ने वाला है। मेरे आका ने, रसूल खुदा ने, महबूब खुदा ने अपने नवासे को उठाया और सीने से लगाया, माथे को चूमा, गालों को चूमा, फूलों के मुबारक को चूम कर फरमाया, अरे मेरे नवासे हुसैन, उस दरख्त के करीब सिद्दीक़ अकबर भी गए, उस दरख्त के करीब फारूक आजम भी गए, उस दरख्त के करीब उस्मान गनी भी गए, उस दरख्त के करीब मौला अली भी गए, तमाम सहाबा गए, लोग जैसे जाते रहे, ईमान लाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस दरख्त में उस नापाक डाल को नहीं देखा। अरे मेरे नवासे हुसैन, उस डाल को आपने देखना, आपने देखा है तो अब उस डाल को कलमाए तैयबा के दरख्त से निकालने का काम भी आपका होगा। उस कलमाए तैयबा के दरख्त से उस डाल को काटने का काम भी आपका ही होगा। छोटी सी उम्र इमाम हुसैन का, गोद में है अपने नाना जान के, सोचते हैं कि क्या इस दरख्त में कुल्हाड़ी चला करके उस नापाक डाल को अलग कर दिया जाए। याद रहे कि उस डाल का नाम ही यजीद था, जो कलमाए तैयबा के दरख्त में एक नापाक डाल आया था, उस डाल का नाम यजीद था। इमाम हुसैन गोद में सोच रहे हैं क्या मैं कुल्हाड़ी ले जाऊं और ले जा करके इस दरख्त से उस डाल को काट कर अलग कर दूं, क्या मैं आरी ले जाऊं और आरी ले जा करके उसे काटूं और काट करके अलग कर दूं। दिल में ख्याल आया कि अगर लोहे की आरी या लोहे की कुल्हाड़ी से मैं उस डाल को काटता हूं तो डाल तो हो सकता है कट जाए, लेकिन कलमाए तैयबा के दरख्त की बेअदबी हो जाएगी, मेरी मोहब्बत में फर्क पड़ जाएगा। अब इमाम हुसैन कशमकश के आलम में है कि नाना ने फरमाया हुसैन, इस डाल को सिद्दीक़ अकबर ने भी, इस दरख्त को सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा, फारूक आजम ने भी देखा, उस्मान गनी ने भी देखा, बाबा मौला अली ने भी देखा, तमाम सहाबियों ने देखा, लेकिन इस डाल में वो दरख्त तुझे ही क्यों नजर आया। नाना जान ने कहा नवासा हुसैन, तूने देखा है उस डाल को, तो उस डाल से, दरख्त से डाल को अलग करने का काम भी अब तेरा होगा। तो इमाम हुसैन दिल में सोच रहे हैं कि अगर लोहे की कुल्हाड़ी से काटता हूं तो कलमाए तैयबा के दरख्त के अदब में फर्क पड़ जाएगा, अगर लोहे की आरी से काटता हूं तो कलमाए तैयबा के दरख्त में अदब में फर्क पड़ जाएगा। लिहाजा हुसैन समझ जाते हैं इसे दुनिया के किसी औजार से नहीं काटना, हुसैन अगर इसे काटना है तो नूर की कुल्हाड़ी लाकर काट देना, नूर की कुल्हाड़ी लाकर काट देना। इसी को आला हज़रत सरकार फरमाते हैं
नाना जान से वादा करते रहे कि नाना जान मैं आपकी दीन की अजमत के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी गर्दन कटवा दूंगा पर दीन पर आँच न आने दूं। मार्का करबला का वो खूनी मार्का कि एक एक करके आप लोग बारहा सुनते हैं कि जो भी करबला के मैदान में जाता है जामे शहादत को नोश फरमा लेता है। जो भी गया, जब इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ गए, एक वक्त ऐसा आया था अल्लाह के नबी की बारगाह में कि अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। एक वक्त ऐसा आया नबी के प्यारे नवासे पर कि मदीने से हिजरत करके मक्का तशरीफ ले जा रहे हैं। मदीने से मक्का आए, मक्के से करबला आए और करबला में आप लोगों ने खैमा जर किया। 22,000 लश्करे जर्रार सामने आया। आप लोगों पर 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया, भूखे और प्यासे थे। और उसके बाद इमाम हुसैन जो कभी नबी के कांधे पे सवार होते थे वो अपने कांधे पर लाशों को ढो रहे। वो हुसैन जो कभी मुस्तफा की आगोश में बैठे रहते थे अपनी आगोश में अली असगर को तड़पते हुए देख रहे। वो हुसैन जो कभी मुस्तफा की जुबान को चूसा करते थे वो हुसैन करबला में अपने आल की जुबान को सूखा देख रहे। वो हुसैन जो मदीने की गलियों में अपने नाना जान के कांधे पे सवार होकर टहलते और जब काफिर देख कर कहते हैं हुसैन तेरी सवारी तो बड़ी प्यारी है, तेरी सवारी तो बहुत अच्छी है, तो पलट कर हुसैन नहीं बल्कि रब का महबूब जवाब देता नाथान सवार होने वाला भी तो बहुत अच्छा है, सवार होने वाला भी तो बहुत प्यारा। वो हुसैन करबला के मैदान में सुबह से लेके दोपहर तक अपने कांधे पर लाशों को ढो ढो कर थक चुके। वो कांधा जिसे खुद मुस्तफा ने कभी सहलाया था, वो कांधा जिस कांधे पर नबी ने कभी अपना हाथ मुबादस्ते मुबारक रखा, वो कांधा इमाम हुसैन का करबला में झुक जाता है। वजह यह होती है कि जो भी करबला के मैदान में जाता जामे शहादत को नोश फरमा लेता। और जब इमाम हुसैन मदीने से चले थे तो अपने साथ चंद सहाबा को लेकर चले। जवान नहीं थे, वो ज़ईफ सहाबी थे, ज़ईफ सहाबी। हजरत ज़हीद बिन कैल करबला के मैदान में मौजूद थे, दिगर और सहाबा करबला के मैदान में मौजूद थे और एक करके सबने करबला के मैदान में जामे शहादत को नोश फरमाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे में तशरीफ लाए। आका हुसैन की बारगाह में हजरत अली अकबर आ जाते। वो अली अकबर जिन्हें शबीह मुस्तफा कहा जाता है। मुफस्सिराने किराम लिखते हैं कि जब मदीने वालों को नबी की याद ज्यादा सताने लगती तो वो हजरत अली अकबर के चेहरे का दीदार करने लगते। बताते हैं कि जितना हजरत अली अकबर अपने नाना मुस्तफा से मिलते थे उतना कायनाते आलम में कोई नहीं मिलता। और यही वजह है कि मुफस्सिराने किराम जहां भी हजरत अली अकबर का तस्करा करते हैं साथ में शबीह मुस्तफा भी कहते हैं, तस्वीर मुस्तफा भी कहते हैं। तो हजरत इमाम हुसैन लाशों को ढो ढो कर थक चुके थे। इमाम के दिल में ख्याल आया कि करबला में मैं जाऊं और मैं भी जामे शहादत को नोश फरमाऊं, इसलिए कि सुबह से लेके अब तक मैं लाशों को ढो ढो कर थक चुका। इमाम हुसैन आए थे सोचकर मैं तैयार हूँ और करबला में जाऊँ कि अली अकबर ने रास्ता रोक कर अर्ज किया बाबा जान आपने एक एक करके सबको इजाजत दे दी, अपने जवान बेटे को कब इजाजत दोगी? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर, हजरत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद उनके अलम को मैंने संभाल रखा, मेरी शहादत के बाद इस दस्ते के अलम को आपको संभालना है। तो हजरत अली अकबर ने अर्ज किया बाबा जान मैं चाहता हूं कि मुझे भी करबला का दूल्हा बनाया जाए, मैं चाहता हूं कि मुझे भी करबला में शहादत का जाम पिलाया जाए, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से एक एक करके करबला में सबने
अपनी बहादुरी को दिखाया, मुझे भी अपनी बहादुरी दिखाने का एक मौका दिया जाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर जिद ना करो, बेटा अली अकबर जिद ना करो, इसलिए कि तेरा बाबा सुबह से लाशों को देख रहा है। हुर बिन रियाही की लाश को मैं अपने कांधे पे उठा के लाया, अब्दुल्ला बाप कल्बी की लाश को अपने कांधे पे उठा के लाया, ज़हीर बिन कैन की लाश को अपने कांधे पे उठा कर लाया, मुस्लिम बिन औसजा की लाश को अपने कांधे पे उठा के लाया, हजरत अब्बास अलमदार की लाश को अपने कांधे पे उठा कर लाया, हजरत औनो मोहम्मद की लाश को अपने कांधे पे उठा के लाया, हजरत इमाम कासिम की लाश को अपने कांधे पे उठा के लाया। ऐ बेटा अली अकबर, अब तेरे बाबा में इतनी ताकत नहीं रह गई कि करबला में तेरे बाबा का 18 साल का जवान बेटा तड़प रहा हो, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हो, और तेरा बूढ़ा बाप देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत अली अकबर तड़प करके अपने बाबा के कदमों को पकड़ते हैं और अर्ज करते हैं बाबा जान जरा सोचिए तो सही, जब आप सही होकर के अपने 18 साल के जवान बेटे की लाश करबला में तापते नहीं देख सकते, तो आपका 18 साल का जवान बेटा अपने बूढ़े बाबा की लाश को कैसे करबला में तापते देखेगा, कैसे लाश में घोड़े दौड़ते देखेगा। बाबा जान हमें इजाजत दे दीजिए, इसलिए कि आपके बेटे अली अकबर में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बूढ़े बाप के लाशे को करबला में देखे, अपने ज़ईफ़ बाप के लाशे पर घोड़ा दौड़ता हुआ देखे, अपने ज़ईफ़ बाप के लाशे को करबला में तड़पता हुआ देखे। ज़ौक़े शहादत को इमाम हुसैन ने जब देखा तो फरमाया बेटा अली अकबर जाओ पहले अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत ले लो, अगर उन्होंने इजाजत दे दिया तो मेरी इजाजत है। हजरत अली अकबर रोते हुए उठे थे, लेकिन मुस्कुराते हुए इमाम हुसैन की बारगाह से चलते हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से सैयदा ज़ैनब को मना ही लूंगा। हजरत अली अकबर पहुंचे, हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में अर्ज करते फूफी ज़ैनब करबला के मैदान में मैंने उम्मे लैला को भी देखा, उम्मे रबाब को भी देखा, मां शहरबानो को भी देखा, हजरत फिज़ा को भी देखा, मैंने तमाम खातूनों को देखा, लेकिन इन खातूनों में अगर सबसे चालाक मुझे कोई नजर आया तो फूफी ज़ैनब आप हैं, फूफी ज़ैनब आप हैं। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं, बड़े हैरान वाली निगाह से हजरत अली अकबर की तरफ देखती हैं और फरमाती बेटा अली अकबर सुबह से लेकर अब तक तेरी फूफी ज़ैनब की नजरों ने कई लाशों को देखा, भाई की लाश को करबला में तापते देखा है, भांजों की लाश को करबला में शहीद होते देखा है, भतीजों की लाश पर घोड़े दौड़ते देखा है, और अपने लाल को की गर्दन को अपनी आगोश में आते देखा है। बेटा अली अकबर मैंने क्या चालाकी की कि आप मुझे सबसे ज्यादा चालाक करबला में कह रहे हैं। तो अली अकबर ने अर्ज किया फूफी ज़ैनब आप गलत ना समझे, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका 18 साल का जवान बेटा मौजूद है और मेरे दो छोटे भाइयों को मुझसे पहले करबला का ताजदार बनाकर भेज दी और अपने 18 साल के बेटे को बचा रखा है, 18 साल के भतीजे को बचा रखा है। तो हजरत ज़ैनब ने अपने चेहरे को मोड़ लिया, अपने चेहरे को फेर लिया। वजह ये थी कि अली अकबर इस तरीके से अपनी फूफी से इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे भी करबला में जाने की इजाजत थी। सैयदा ज़ैनब ने चेहरे को मोड़ लिया तो हजरत अली अकबर उठे और सैयदा ज़ैनब के चेहरे की तरफ आए, बड़े प्यार से हाथों को थामा, बड़ी मोहब्बत से हाथों को थामा और अर्ज किया फूफी ज़ैनब अगर आपने चेहरा मोड़ लिया तो कौन है जो अली अकबर को करबला में जाने की इजाजत दिलाएगा, कौन है जो मुझे करबला में जाने की इजाजत मेरे बाबा हुसैन से दिलाएगा। फूफी जान जैसे आपने अपने बेटों को जन्नती दूल्हा बनाया था, क्या अपने भतीजे को जन्नती दूल्हा न बनाएंगी? जिस तरीके से आपने अपने लाल को करबला में तैयार करके भेजा था, अपने भतीजे को तैयार करके न भेजेंगी? सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए फरमाया बेटा अली अकबर अभी कुछ देर पहले मेरी आगोश में मेरे दोनों लाल औनो मोहम्मद की गर्दनें मुबारक पड़ी थी और मैं ये सोच कर सब्र कर रही थी कि अगर मुझे कभी बेटों की याद आएगी तो मैं अली अकबर के चेहरे को देख लिया करूंगी, दिल को सुकून मिल जाया करेगा, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हजरत अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, आंखों में आंसू लाया, अर्ज
किया बेटी ज़ैनब, एक एक करके सब करबला के मैदान में गए। जमाना क्या कहेगा कि इमाम हुसैन ने सहाबियों को शहीद करा दिया, इमाम हुसैन ने गुलामों को शहीद करवा दिया, इमाम हुसैन ने जवानों को शहीद करवा दिया, इमाम हुसैन ने भतीजों को शहीद करवा दिया, इमाम हुसैन ने भांजों को शहीद करवा दिया और अपने 18 साल के जवान बेटे को बचा लिया। जमाना क्या कहेगा? तो सैयदा ज़ैनब ने जब ज़ौक़ शहादत को देखा तो खड़ी हुई, अली अकबर के हाथ को पकड़ा और सीधा इमाम की बारगाह में गई। अर्ज करती हैं, भैया हुसैन, मैंने अली अकबर को इजाज़त दे दिया, आप भी इजाज़त दे दें, आप भी इजाज़त दे दें। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अली अकबर जाओ और जा करके खैमे में तमाम खातूनों को आखिरी बार सलाम पेश कर दो। हज़रत अली अकबर आए बड़े खुश होकर के कि मुझे भी करबला में जाने की इजाज़त मिल गई और सबको सलाम पेश किया। जब सलाम पेश करते करते अपने वालिदा के करीब जाते हैं तो माँ ने पूछा, बेटा अली अकबर, अभी तक आप करबला नहीं गए, अभी तक आप गर्दन नहीं कटाए और अभी तक आप खैमे में मौजूद हैं, कब जाओगे करबला के मैदान में कि मुझे भी यह मौका मिले कि जब बरोज़े महशर शहीदों की माओ खड़ी हो, शहीदों की माओ की लाइन हो, तो उनमें मैं भी शामिल रहूं, उन लाइन में मैं भी शामिल रहूं और मुझे भी कह के पुकारा जाए, ऐ अली अकबर शहीद की वालिदा, तुम भी इस सफ में आकर खड़ी हो जाओ। अपनी माँ को कभी यह मौका मुसर्रफ करोगे, कभी यह मौका अता करोगे? हज़रत अली अकबर ने रोते हुए अर्ज़ किया, अम्मी जान, तेरा लाल तेरी बारगाह में आखिरी बार सलाम पेश करने आया था, तेरा रखते जिगर तेरी बारगाह में आखिरी बार अलविदा कहने आया था। हज़रत अली अकबर की वालिदा सैयदा ज़ैनब एक हाथ को आपकी वालिदा पकड़े हुई है, दूसरी हाथ को सैयदा ज़ैनब पकड़े हुए हैं और दोनों चल करके दरवाजे तक आते हैं खैमे के। और उसके बाद हज़रत अली अकबर को बाहर निकाला गया और ये दोनों दरवाजे की आड़ से अली अकबर को देखने लगते हैं। अली अकबर घोड़े के करीब जैसे ही पहुंचते हैं, हज़रत इमाम हुसैन करीब आते हैं, अपना जानवे मुबारक को उठाते हैं और फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, मेरे जानवे मुबारक पर अपना पैर रखो और घोड़े पे सवार हो जाओ। अली अकबर ने अपने बाबा हुसैन की तरफ देखा और देख करके अर्ज किया, बाबा जान, मुझसे पहले करबला में कई शहीद गए हैं और मैंने देखा कि आपने अली इमाम कासिम को भी भेजा, अब्बास अलमदार को भी भेजा, बिन रियाही को भी भेजा, हज़रत अब्दुल्ला वहाब कल्बी को भी भेजा, कई सहाबी को भेजा, लेकिन किसी को घोड़े में सवार करते वक्त अपना जानवे मुबारक को नहीं दिया। आखिर बात क्या है कि आप अपना जान अपने बेटे के लिए उठा रहे हैं और फरमा रहे हैं, मेरे जान पे पैर रख करके घोड़े पे सवार हो जाओ। तो हज़रत इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबा अपने बेटे अली असगर को कलेजे से लगाया और लगाने के बाद आका हुसैन सारों कतार रोते हैं, रोते रोते हिचकियां बढ़ जाती है। अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा जान, मैंने वजह पूछी थी और आप इस कदर रो रहे हैं कि हिचकियां बन गई है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर, मेरे अंदर भी बाप का दिल तड़प रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, मेरे अंदर भी बाप का दिल मचल रहा है, मेरे अंदर भी वो दिल मौजूद है जिस दिल में बाप की मोहब्बत होती है, जिस दिल में बाप का प्यार होता है, जिस दिल में बाप की शफकत होती है और हर बाप की तमन्ना होती है कि अपने बेटे को घोड़े पे दूल्हा बना करके सवार करे। मेरी भी तमन्ना है कि मेरा बेटा जब दूल्हा बने तो मैं उसे अपने गोद में लेकर के सवार करूं, लेकिन करबला के मैदान में तेरा बाबा सुबह से लेके अब तक लक्ष्यों को ढो-ढो कर थक चुका है। अब तेरे बाबा में इतनी कुव्वत नहीं कि 18 साल के अपने जवान बेटे को गोद में उठाए और गोद में उठा करके घोड़े पे सवार करे। लिहाजा मैंने अपने जान को ही दे दिया कि कोई तो ऊंची जगह हो जाएगी जिसमें सवार होके मेरा बेटा घोड़े पे सवार हो, दुनिया का दूल्हा नहीं, जन्नत का दूल्हा बनता नजर आए। हज़रत अली अकबर अपने बाबा इमाम हुसैन के जानवे मुबारक पे पैर रखे और घोड़े पे सवार हो जाते। होने के बाद में अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन को आखिरी बार सलाम पेश करते हैं, घोड़े को एड़ लगाते हैं कि मैदान काराज़ार में जाऊं, लेकिन घोड़ा जुम्बिश नहीं करता, घोड़ा हिलता नहीं है। अब आप देखें कि जो नूर होता है, मतलब ये कि अल्लाह के नबी की ये शान है
کہ اللہ کے نبی جس شے سے بھی بات کرے تو وہ انہیں جواب دیا کرتے، وہ انہیں جواب دیا کرتے۔ یہ صرف نبی کی شان نہیں بلکہ نبی کے آل کی بھی یہی شان ہے۔ نہ گھوڑا بے زبان ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، اے گھوڑا کیا وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ 22,000 گھوڑوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، 22,000 یزیدیوں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، 22,000 تلواروں کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، 22,000 کا لشکر دیکھ کے ڈر رہا ہے؟ تو خدا کی قدرت سے گھوڑے نے کلام کیا اور عرض کیا، علی اکبر میرے پیروں کو حضرت سکینہ پکڑے ہوئی ہے، میرے پیروں سے سیدہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے، اور آج میں انہیں کچل کر یزیدی نہیں بلکہ انہیں بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں۔ نبی کے آل کا یہ کرامت ہے، جس سے وہ بات کرے وہ انہیں جواب دیا کرتے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر نے سنا کہ گھوڑا کہہ رہا ہے کہ میری ٹانپوں کو سیدہ سکینہ پکڑے ہوئی ہے، تو آپ نے نیچے جھک کر دیکھا تو سیدہ سکینہ گھوڑے کے ٹانپ کو پکڑ کر سسکیاں لے لے کر رو رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھائے اور فرماتے ہیں، بہن سکینہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ گھوڑے کے ٹانپ کو کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ تو سیدہ سکینہ نے عرض کیا کہ بھیا علی اکبر، جب بھائی دولہا بن کر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو اپنی بہنوں کو نیگ دیا کرتے ہیں، اور آپ ایسے بھائی ہیں کہ جنت کے دولہا بن کے جا رہے ہیں، جنتی دولہا بن کے جا رہے ہیں، کربلا کے دولہا بن کے جا رہے ہیں، اور اپنی چھوٹی بہن سیدہ سکینہ کو کوئی نیگ دے کے نہیں جا رہے ہیں۔ کیا بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دولہا بنے اور بہن کو نیگ نہ دے؟ کہ ابھی سیدہ سکینہ بات ہی کر رہی تھی کہ حضرت علی اکبر کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے سیدہ سکینہ کے دامن میں گر جاتے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے تڑپ کر کے عرض کیا، بھائی علی اکبر، دنیا کا کیا کوئی بھائی اپنے بہن کو نیگ میں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ دے گا؟ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہا کر دے گا کوئی بھائی ہے دنیا میں جو اپنی بہن کو نیگ کی جگہ پر آنکھ کا آنسو عطا کر دے؟ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا، بہن سکینہ آج تیرے بھائی علی اکبر کے پاس جو تھا وہ عطا کر دیا، اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو اپنے بھائی علی اکبر سے جنت میں لے لینا، جنت میں لے لینا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ کو حضرت امام حسین کی گود میں دیے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، لیکن اب ایڑ لگانے سے پہلے آپ اپنا رخ مدینہ کی طرف کرتے اور سالوں ختم ہوتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، مفسران کرام لکھتے ہیں کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی ہے اور داڑھی کے نیچے آنسو کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، بیٹا علی اکبر، اب عین وقت ہے کربلا کے میدان میں جانے کا، عین وقت ہے اپنی بہادری دکھانے کا، عین وقت ہے کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کا، عین وقت ہے جنگ کا طریقہ دکھانے کا، اور آپ ہیں کہ مدینے کی طرف رک کر کے روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے عرض کیا تھا، بابا جان صرف وجہ اتنی ہے کہ میری شہادت کے بعد اگر آپ مدینے تک پہنچ جائے تو میری بہن سغرا سے کہنا کہ تیرے بھائی علی اکبر نے تجھ سے معافی مانگا ہے، اس لیے جو وعدہ وہ مدینے سے کر کے آیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ حضرت امام حسین نے تسلی دیا اور اپنے بیٹے علی اکبر کو کربلا کی جانب کوچ کرنے کے لیے فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کو لگایا، کربلا کے میدان میں آئے، 22,000 کا لشکر زرار سامنے ہے۔ علی اکبر آتے ہی فرماتے یزیدیو، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو، مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو، اس لیے کہ ابھی تک جو آئے تھے وہ ضعیف تھے یا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب 18 سال کا جوان تمہارے قریب آیا ہے۔ ابھی تک جو آ رہے تھے، ابھی تک جو آ رہے تھے اس میں کتنے میرے بابا کے غلام تھے، کتنے میرے نانا کے غلام تھے، لیکن اب جو آیا ہے وہ غلام نہیں بلکہ کربلا کا آقا تشریف لایا، جنتی دولہا تشریف لایا ہے۔ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، مجھے ہی شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں مصطفیٰ کا نواسا، علی کا پوتا، امام حسن کا بھتیجا اور امام حسین کا لگتے جگر ہو۔ جس کو مقابلے کے لیے آنا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، جس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہو وہ میرا مقابلہ کر لے، جس کو اپنے طاقت پہ غرور ہو وہ میرے سامنے آ جائے، جو اپنی قوت کا معائنہ کرا
अली अकबर से पहले हजरत औनो मोहम्मद के तलवार चलाने के अंदाज को देख रहे थे। इस कदर कत्ल करते करते औनो मोहम्मद उमर बिन साद की गर्दन तक पहुंच गए थे कि 22,000 का लश्कर जर्रा उन्हें रोक ना पाया था। वो तो बच्चे थे, अब उसी में का जवान आ गया, उसी घर का जवान आ गया। हजरत अली अकबर ने फिर फरमाया, आलमी मुबारिस है कोई जो मेरा सामना कर सके, तेरे सामने लड़ने आ सके, मेरा मुकाबला कर सके। जब कोई न निकला तो हजरत अली अकबर ने तलवार को लहराया और खुद ही यजीदियों की सब में घुस जाते। तन्हा अली अकबर और 22,000 का लश्कर जर्रार सामने, और तन्हा अली अकबर उस 22,000 के लश्कर में घुसते हैं और जिधर रुख करते हैं सिर्फ गर्दनें कटती नजर आती है। कभी मैं सरा की तरफ रुक गया तो गर्दन कटती नजर आई, कभी मैं मना की तरफ रुक गया गर्दन कटती नजर आई। काटते 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 हजरत इमाम हुसैन जब ठहरते हैं तो 7,000 से जायद कतरे करबला के मैदान की जमीन में पड़ी हुई नजर आती है। 7,000 कतरे काटने के बाद हजरत अली अकबर ने मैदान करबला से घोड़े को मोड़ा, और मोड़ने के बाद वे पहले शहीद ऐसे थे जो यजीदियों की लश्कर तक गए, लश्कर में घुसकर जंग करे, यजीदियों को कत्ल करने के बाद खैमे तक वापस आए, और आने के बाद कायनात को ये सबक दे दिया कि हमारा घराना वो घराना है कि हम नबी की आल में से ऐसे आल हैं कि हमारी हुकूमत सारी कायनात में चलती है। हम जब चाहे जहां चाहे चले जाते हैं और जब चाहे जहां से चाहे वापस आ जाया करते हैं। अली अकबर ने कायनात आलम को बता दिया कि 22,000 लश्कर में मैं गया और यजीदियों को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद घोड़े को मोड़ा और खैमे तक वापस आया। हजरत इमाम हुसैन करीब आ गए और फरमाते, बेटा अली अकबर, बड़ा प्यारा अंदाज था आपके करबला के मैदान में जंग करने। जब आप तलवार चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था अली अकबर नहीं, करबला में मौला अली तलवार चला रहे थे। जब आप तलवार चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि खुदा का कहर आपकी तलवार पे आकर यजीदियों पर नासिब हो रहा है। बड़ा प्यारा अंदाज था। तो आप करबला से वापस क्यों आ गए? तो हजरत अली अकबर ने अपनी जबान को दिखाया, जबान को दिखाकर अर्ज किया, बाबा जान, अगर मुझे चंद बूंद पानी का मिल जाए तो मैं करबला के इतिहास को बदल कर रख दूंगा, मैं करबला के तारीख को पलट दूंगा। लिखने वाला मुअर्रिख ये लिख देगा कि एक 18 साल के जवान ने 22,000 यजीदियों को कत्ल करके जहन्नम में पहुंचा दिया। बाबा जान, चंद बूंद पानी के मिल जाए, चंद बूंद पानी के मिल जाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर, आपको पता है कि 3 दिन से हम लोगों पर पानी बंद कर दिया गया है। सैयदा सकीना खैमे में प्यासी है, झूले में अली असगर पैरों को पटक रहे हैं, किसी को पानी का एक कतरा नसीब नहीं हुआ। बेटा अली अकबर, आज तेरे बाबा हुसैन के पास कुछ नहीं है जो तुझे अता करके तेरी प्यास को बुझा दे। तो सैयद हजरत अली अकबर ने फिर अर्ज किया, बाबा जान, अरे कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए, कल्ब को तसल्ली हो जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के जवान बेटे को अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद में आपने अपनी जबान को बाहर निकाला। इमाम हुसैन ने अपनी जबान को बाहर निकाला और फरमाया, बेटा अली अकबर, मेरी जबान को चूसो। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर अपने ज़ईफ बाप की जुबाने मुबारक को चूस रहे। चूसते चूसते जब आपको कुछ राहत मिल जाती है, तसल्ली हो जाती है, तो आपने चूसना बंद किया, अपने बाबा की बारगाह में अर्ज किया, बाबा जान, हम भी 3 दिन के प्यासे और आप भी 3 दिन के प्यासे, हमारी जबान सूख कर कांटा हो चुकी है, आपकी जबान में अब भी तरी बाकी है, आखिर मामला क्या है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर, जिस दिन से तेरे नाना मुस्तफा ने अपनी जबान से मेरी जबान को टच कर दिया है, मुझे कभी प्यास की तकलीफ नहीं हुई, मुझे कभी प्यास की तकलीफ नहीं हुई है। हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में जैसे ही आप पहुंचते हैं, 22,000 का लश्कर जर्रार जान बचाने के लिए छुपने की जगह तलाशने लगे, इसलिए कि हजरत अली अकबर इंतजार नहीं करते कि कौन एक
करके आए सामने खुद ही घुस जाते, खुद ही लश्कर में घुस जाते और वार करना शुरू करते हैं। यजीदी जगह ढूंढने लगे, जिसको जहां जगह मिली वो छुपना शुरू किया। कोई दरवाजे के आड़ में छुपा, कोई खैमे के पीछे छुपा, कोई पहाड़ी में जाकर छुपा, कोई खड्डे में जाकर छुपा, जिसे जहां जगह मिली वो छुपने लगा। ये शेर खुदा के लाल थे, इमाम हुसैन के लगते जिगर थे, मुस्तफ़ा के नवासे थे और ज़माने को ये बतलाना चाह रहे थे कि नबी की शरीयत पे चलने वाले 22,000 क्या 22 करोड़ की तादाद में हो तो डरना नहीं। ज़माने को ये बताना चाह रहे थे कि एक अकेला 22,000 को छुपने पर मजबूर कर दिया, जान बचाने पर मजबूर कर दिया। हज़रत अली अकबर ने तलाशना शुरू किया, तलाशना, जिसे जहां पाते वहीं पटक कर ज़बह कर देते, जिसे जहां पाते वहीं उसको कत्ल कर देते, जिसको जहां पाते वहीं से कत्ल करके जहन्नम में पहुंचा देते। कुछ देर तक अली अकबर करबला के मैदान में यजीदियों को ढूंढ कर कत्ल कर, किसी को पहाड़ी के पीछे पा जाते तो उसे वहीं कत्ल करके जहन्नम में पहुंचा देते। आखिरकार कुछ देर के बाद आप फिर थक जाते, फिर घोड़े पर सवार होते हैं, बाबा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं बाबा जान जो जुबान आपने मुझे चुसाई थी एक बार और चुसा दीजिए। कसम खुदा की अगर मैं अब की चूस करके करबला के मैदान में गया तो तारीख लिखने वाले ये लिख देंगे कि 22,000 लश्करियों में से एक भी जिंदा घर वापस नहीं गया, सबकी बीवी बेवा हो गई और सबके बच्चे यतीम हो गए। हजरत इमाम हुसैन करीब आते हैं, आकर के फरमाते बेटा अली अकबर अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाओ। हजरत अली अकबर ने अपनी नजर को आसमान पर उठाया तो क्या देखा, आपके नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम जामे कौसर का गिलास लेकर खड़े हैं और फरमा रहे अली अकबर अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं अपने नाना के हाथ से जामे कौसर पीना है, मेरे करीब आ जाओ मैं तुम्हें जामे कौसर अता करूंगा। अली अकबर समझ जाते हैं कि अब मैं करबला के मैदान में जाऊंगा तो शहादत का जाम नोश फरमा लूंगा। बड़ी मोहब्बत से अपने बाबा के चेहरे को ताकने लगते हैं, अपने बाबा इमाम हुसैन के चेहरे को देखते हैं और देखने के बाद अपने बाबा के करीब आते हैं, आखिरी बार अलविदा कहते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, करबला के मैदान में जाते हैं, हर मिन मुबारिस की सदा बुलंद करते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है ऐ यजीदियों तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बहुत बड़े बड़े बहादुर बनते रहे, करबला के मैदान में तुम इसलिए आए हो कि तुम लोग अपनी अपनी ताकत पे गुरूर करते हैं। एक अली अकबर है और तुम लोग उसका भी सामना नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो इन्हें चारों तरफ से घेरो। और जिस तरीके से तुमने बहादुरों को घेर करके मारा अली अकबर को भी घोड़े से नीचे गिरा दो। हजरत अली अकबर को चारों तरफ से घेरा गया, तीरों की बारिश हुई, कई तीर आपके जिस्म अक़दस में लगे। जब आप घोड़े से नीचे गिरने लगे, जब आप घोड़े से नीचे गिरने लगे, इधर हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे गिरते हैं, उधर सैयदा ज़ैनब आपकी वालिदा जमीन पे गिर जाती है और इमाम हुसैन ये सारा मंजर एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर देखते रहते हैं कि जैसे ही आपका लगते जिगर घोड़े से गिरता है हुसैन टीले से गिरकर नीचे आ जाते हैं। आवाज देते हैं अली अकबर बाबा जान जैसे आप तमाम शहीदों के लिए आए थे क्या अपने बेटे अली अकबर के लिए ना आएंगे? बाबा जान क्या अपने बेटे अली अकबर के पास ना आएंगे? बाबा जान क्या आखिरी बार अपने बेटे अली अकबर से बात करने ना आएंगे? किसी तरीके से हुसैन समझते हुए खड़े होते हैं और दौड़ते हैं कि आखिरी बार मैं अपने लाल से कुछ बात कर लूं, आखिरी बार अपने लगते जिगर से कोई गुफ्तगू कर लूं। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन अपने 18 साल के बेटे के करीब पहुंचते हैं यजीदी करीब जाने नहीं देते। इमाम हुसैन दाएं से जाना चाहते हैं, यजीदी घोड़े दाएं से भगा रहे, बाएं से जाना चाहते हैं, यजीदी घोड़े बाएं से भगा रहे। इमाम हुसैन आगे से जाना चाहते हैं, यजीदी घोड़े आगे से भगा रहे। इमाम हुसैन पीछे से जाना चाहते हैं, यजीदी घोड़े पीछे से भगा रहे। इमाम हुसैन ने देखा कि मुझे मेरे बेटे अली अकबर के करीब नहीं जाने दे गए तो इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी तलवार हवा में लहराई कि लहराना ही था कि यजीद भेड़ियों की तरह भागना शुरू किया और चंद मिनट में पूरा करबला खाली हो जाता है। अली अकबर के करीब आते हुसैन अपने 18 साल के जवान बेटे के लाश के करीब आते और आने के बाद घुटने के बल बैठते। आका हुसैन घुटने के बल बैठते और बड़े प्यार से अपने बेटे अली अकबर से बात कर रहे।
فرما رہے بیٹا علی اکبر تیرا بابا صبح سے لے کے اب تک کئی لاشوں کو اٹھایا لیکن کسی کی لاش اٹھانے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف تیرے بابا کو تیری لاش اٹھانے میں ہوئی۔ مفسران کرام لکھتے ہیں شہید ہونے کے باوجود علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور عرض کیا بابا جان جب کسی کی لاش اٹھانے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوئی تو اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر تیرا بابا جب ہوری بری ریاحی کی لاش کو اٹھایا تھا لاش پوری تھی کاندھے پہ اٹھایا اور خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ جب حضرت عبداللہ وہاب قلبی کی لاش کو اٹھایا لاش پوری تھی کاندھے پہ اٹھایا خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ حضرت مسلم بن اوسجا زہیر بن قین کی لاش کو اٹھایا لاش پوری تھی کاندھے پہ اٹھایا خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ تیرا بابا جب عباس علمدار کی لاش کو اٹھایا لاش پوری تھی کاندھے پہ اٹھایا خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ جب تیرے بھائی امام قاسم کی لاش کو اٹھایا لاش پوری تھی کاندھے پہ اٹھایا خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ جب تیرے بھائی اون محمد کی لاش کو اٹھایا لاش پوری تھی کاندھے پہ اٹھایا خیمے میں لے جا کر رکھ دیا۔ لیکن علی اکبر تیرے لاش کے تو ٹکڑے کر دیے گئے، تیری لاش کے تو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، تیری لاش ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر تیرا بابا تیرے پیر کو اٹھاتا ہے تو ہاتھ کربلا میں چھٹ جائے گا، اگر ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو جسم کربلا میں چھٹ جائے گا، اگر جسم کو اٹھاتا ہے تو سر کربلا میں رہ جائے گا۔ بیٹا علی اکبر بتا کہ تیرا ضعیف بابا تیرے لاش کو کس طرح کاندھے پہ اٹھائے؟ تو علی اکبر نے عرض کیا بابا جان آپ نے تمام لاشوں کو کاندھے پہ اٹھایا تھا، اپنے بیٹے کی لاش کو مصطفیٰ کے دستار پہ اٹھا لیجیے، آقا کے دستار پہ اٹھا لیجیے، نانا کے دستار پہ اٹھا لیجیے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے سر کا صافہ مبارک زمین پہ بچھایا اور بچھانے کے بعد اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے۔ اس وقت آقا حسین کے دل پر کیا گزرائی ہوگی جب امام حسین اپنے 18 سال کے جوان بیٹے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے۔ پیر اٹھا کر کے صافے میں رکھا، ہاتھ اٹھا کر کے صافے میں رکھا، جسم کے ٹکڑے اٹھا کر صافے میں رکھا، سر اٹھا کر کے صافے میں رکھا اور اس کے بعد صافے کی گٹھری بنائی اور گٹھری بنانے کے بعد آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کاندھے پہ نہیں بلکہ اپنے پیٹھ پہ لایا، پیٹھ پہ لاتے آگے حسین ضعیفی کی عالم میں پیٹھ پہ لا کر جھک کر کے چل رہے۔ جیسے ہی 2-4 قدم آقا حسین نے آگے بڑھایا تو بڑھانے کے بعد اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کیا، پیٹھ پہ 18 سال کے جوان بیٹے کا لاشا لیے ہوئے حسین اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا اور عرض کیا اے پروردگار عالم تیرا بارہا شکر ہے کہ تو نے میرے 18 سال کی بیٹے کی بھی شہادت قبول فرما دی۔ ایسا ثابت کائنات عالم میں امام حسین کے بعد پھر پیدا ہونے والا، ایسا صبر کرنے والا کہ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کو شہید کروایا اور اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سب سے آخر کربلا کے میدان میں جامع شہادت امام حسین نے فرمایا۔ یہ ایسی بات نہیں کہ امام حسین کی کوئی کرامت نہیں، کربلا کے میدان میں بہت ساری کرامت ہے اور سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ امام حسین جس یزیدی کے لیے رب کی بارگاہ میں بد دعا کرتے دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ جس یزیدی کے امام حسین نے کربلا کے میدان میں بد دعا کی تھی اسی کربلا کے میدان میں اسے سزا مل گئی ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں ہاتھوں کو اٹھا لیتے تو ہو سکتا تھا رب تبارک و تعالیٰ تمام شہادتوں کو بٹھا دیتا، تمام شہادتوں کو اٹھا دیتا، لیکن آقا حسین نے نہ تو اپنی جان کی دعا کی، نہ تو اپنے کسی ساتھی کی، نہ تو کسی آل کے لیے دعا کی، اس لیے کہ امام حسین جان رہے تھے کہ یہاں پہ جان جو قربان کرنے والے ہیں تو اپنے نانا کے دین کو قیامت تک وہ زندہ کرنے والے ہیں۔ امام حسین جان رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں مجھے شہید کرنے کے بعد پھر کسی کو شہید نہ کیا جائے۔ مفسران کرام امام حسین کے کرامت کو لکھتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا تو جس وقت امام حسین کے حلق پر خنجر چل رہا تھا مفسران کرام لکھتے ہیں عین اس وقت ایک کبوتر کا دستہ آپ کے اوپر سے گزر، کبوتروں کا دستہ آپ
के ऊपर से गुजरता रहा था, उन कबूतरों ने देखा कि इमाम हुसैन के हलक पे खंजर चलाया जा रहा है। जैसे ही यजीदी खंजर चलाकर हटता है, इमाम हुसैन का खून मुबारक करबला की जमीन को सैराब करने लगती है, करबला की जमीन पे बहने लगती है। तो वो दस्ता जो उड़ता हुआ इमाम हुसैन के गले पे खंजर चलता देख रहा था, तो वो कबूतर आगे नहीं बढ़ता है बल्कि सीधे उतरते हैं और इमाम हुसैन के खून में आकर बैठ जाते हैं। वो कबूतर खून में बैठने के बाद अपनी परों को भिगाते और भिगाने के बाद में उड़ जाती है। उसमें से एक कबूतर पीछे उड़ता है, बाकी कबूतर सीधा मस्जिद नबवी में पहुंचते, मुस्तफा के रोज़े में पहुंचते। और मुफस्सिराने किराम लिखते हैं कि मदीने वालों को यह खबर तब पहुंचती है जब ये कबूतर अपने परों को खून में भिगो करके मदीनतुर रसूल में रोज़ाए रसूल की दीवारों पे अपने हाथ को जाकर मारते हैं। कभी उड़ करके इस दीवार से टकराते हैं, कभी उड़ करके उस दीवार से टकराते हैं। पूरा रोज़ाए रसूल की दीवारें इमाम हुसैन के खून से रंगीन कर देते हैं, रंगीन। यहाँ तक मुफस्सिराने किराम लिखते हैं जो दस्ता वहां से उड़कर आया था, एक भी कबूतर जिंदा नहीं बचता, बल्कि इमाम हुसैन की याद में सब शहादत का जानोश करता। जो कबूतर एक पीछे पड़ता वो एक जंगल में जाकर बैठा, जंगल में, उस जंगल में एक दरख्त के डाल पर जाके बैठा और बैठने के बाद वो इमाम हुसैन को याद करके आंसू आ। परिंदा था, उसे भी पता था कि इमाम हुसैन का मर्तबा क्या, इमाम हुसैन का मकाम क्या है, लेकिन इन यजीदियों को न समझ में आया कि इमाम हुसैन का कितना बड़ा मर्तबा है। रो रहा, ये अचानक अपने परों को हिलाता है, तो जो इमाम हुसैन के खून उसके परों में होते हैं, उसके चंद कतरे नीचे गिरते। नीचे एक छोटी सी बच्ची बैठी होती है, लड़की बैठी होती है, जो पैरों से अपाहिज होती है, फालिज की बीमारी, कई बीमारियों में मुब्तला होती है, कई बीमारी लिखते हैं, कई बीमारी में मुब्तला होती है। और उसे गांव से इसलिए निकाला गया था कि वो यहूदी की बेटी थी, और उससे जब बीमारी हुई तो लोगों ने ये सोचा कहीं ऐसा न हो कि इसकी बीमारी हमें भी हो, तो लिहाजा उस यहूदी को उसकी बेटी के साथ वहां से निकाल देती है। तो वो यहूदी अपनी बेटी को उस दरख्त के नीचे बैठा कर ये यहाँ बैठा कर जाता है कि कहीं से रिस्क की तलाश हो, कहीं से खाने का इंतजाम कर लूं ताकि मैं भी खा सकूं और मेरी बेटी को कहकर चला जाता है। उसी दरख्त के नीचे वो अपाहिज लड़की, वो फालिज शुदा लड़की बैठी होती है, और जैसे ही वो कबूतर अपने परों को हिलाता है, चंद कतरे उस लड़की के जिसमें अक़दस पर पड़ते हैं, उसकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है, तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। अब सोचिए तो सही, जब इमाम हुसैन के एक खून के कतरे का ये आलम है, तो इमाम हुसैन का आलम क्या रहा? और जब इमाम हुसैन का आलम ये है, तो मदीने में मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या हो रहा होगा? एक कतरा खून उस यहूदी की बेटी के जिस्म में पड़ता है, तमाम बीमारियां उसके जिस्म से खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद यहूदी आया और आकर के पूछा, बेटी ये तो बताओ, यहाँ पर मैं अपनी एक अपाहिज बेटी को बैठा कर गया था, फालिज शुदा बेटी को बैठा कर गया था, लकवा मारी हुई बेटी को बैठा कर गया था, जो आंखों से देख नहीं सकती थी, कानों से सुन नहीं सकती थी, पैरों से चल नहीं सकती थी, हाथों से पकड़ नहीं सकती थी, और वो कहीं नहीं जा सकती। मैं इसी तरफ के नीचे बैठा कर गया था, आखिर मेरी बेटी गई कहाँ? तो उस लड़की ने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, क्या आप मुझे नहीं पहचान चाहते? जिस अपाहिज बेटी को आप यहाँ बैठा कर गए थे, मुझसे रब ने पूरी बीमारियों को दूर करके मुझे अच्छा बना दिया है, सही बना दिया है। बड़ा हैरान हुआ, पूछा बेटी कैसे सही हो गई? दुनिया के बड़े बड़े तबीबों ने देखा, बड़े बड़े हकीमों ने देखा, लेकिन कोई तेरा इलाज ना कर सका, तू सही कैसे हो गई? तो उस लड़की ने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, मैं इसी दरख्त के नीचे बैठी थी कि अचानक मुझ पे कुछ कतरे गिरे, दरख्त से कुछ कतरे गिरते हैं, और वो कतरों का आलम ये होता है कि जैसे ही मेरे जिस्म पे आते हैं, धीरे धीरे करके मेरी तमाम बीमारी से मुझे शिफायाबी मिल जाती है। वो यहूदी दरख्त को बड़े गौर से देखा, उन डाल को, उसने देखा कि उन डालों पर एक कबूतर बैठा है, और वो कबूतरों के पर, उस कबूतर के पर खून लगा हुआ है। तो उस यहूदी ने पूछा, अरे कबूतर ये तो बता कि तेरे परों पे एक किसका खून है? वो ये सोच रहा था कि परिंदा कभी बात नहीं करता,
اس نے سوچا پرندہ کبھی بات نہیں کرتے. تو مفسران کرام لکھتے ہیں جب یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا اے کبوتر یہ بتا کہ تیرے پر پہ یہ جو خون لگا یہ خون کس کا ہے؟ جس کا عالم یہ ہے کہ ایک بوند